Hey guys, welcome back. In this lecture, we are going to discuss complex compound or the coordination compound subtopics Warner's theory. As everybody knows, the complex compound has two types of valencies. One is the primary valency and second is the secondary valencies. प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो इक्वल टू होती है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल। जो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसके इक्वल होती है प्राइमरी वैलेंसी। जैसे इस एग्जांपल में, इस कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +3। देन जो प्राइमरी वैलेंसी होगी वो इज इक्वल टू 3। ओके। और सेकेंडरी वैलेंसी इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इन दिस कॉम्प्लेक्स the coordination number of the cobalt +3 is 6. Then the secondary valency is equal to 6. Okay. The next point, the primary valency satisfied by anion. In this complex, this part is cation and this part is anion. So this part satisfy the primary valency of the compound, and the secondary valency satisfied by the neutral and anion. Secondary valencies means this valencies here is the ammonia is the neutral ligand, or it may be this primary valency, the coordination number 6 can be satisfied by neutral and anion ligand. Okay. Now third point, the non-directional or ionic bond. The primary valency forms non-directional or ionic bond. This means in this compound the bond between cobalt and the chloride is ionic, and we know ionic bond are non-directional bond. Okay. And the secondary valencies are directional, is equal to the coordinate bonds. Okay, this is the secondary valency is the directional due to the coordinate bond. Directional bond takes part in predicting the hybridization of the compound. Okay, then this is the directional bond is used to determine the hybridization of compound. Okay. Next point, this primary valency is the ionizable, means if we अगर हम इस कंपाउंड को वाटर में अगर डाल देते हैं then this primary valencies get ionized and gives 3 chloride ions in aqueous. Okay, but here the secondary valency is non-ionizable, means अगर इस कंपाउंड को हम वाटर में डालते हैं तो दिस कॉम्प्लेक्स विल नॉट आयनाइज, then this prime secondary valency is non-ionizable. Okay, in the structure the primary valency is represented by a dotted line. Okay, and the secondary valency is represented by a dash. In this
In this complex structure we can see this is dash line, this ammonia is connected by the dash line. These are secondary valencies, and those are connected with the dotted line, means chlorine is the primary valencies. Okay, तो here ये 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये हमें करना है। प्राइमरी वैलेंसीज क्या होगी इस कंपाउंड में? तो बहुत सिंपल है कि प्राइमरी वैलेंसीज इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन। ओके, तो जो भी डॉटेड लाइन से हैं उनको हम प्राइमरी वैलेंसी कहेंगे। तो एक तो ये डॉटेड लाइन क्लोरीन है, एक ये क्लोरीन है, एक ये क्लोरीन है, तो प्राइमरी वैलेंसीज इज हियर इज 3। ओके, तो प्राइमरी वैलेंसी 3 होगी। सेकेंडरी valencies are those valency which are represented by dash। तो डैश वाली कौन कौन से हैं? ये अमोनिया के ये 6 लाइगेंड, ये डैश लाइन से हैं, तो ये सेकेंडरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो गई? 6। और आयनाइजेबल मीन्स when we put this compound in water, तो which valencies get ionized? तो as we know that the primary valencies are ionizable। तो प्राइमरी वैलेंसीज कौन कौन सी हैं? ये तीनों क्लोरीन जो हैं ये प्राइमरी वैलेंसीज हैं। तो हियर इज आयनाइजेबल कौन कौन सी हैं? 3 क्लोरीन। ठीक है, तो ये हो गया। अब नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। नोट लगा के इसको लिखेंगे। व्हेन एनायन प्रेजेंट इन द स्क्वायर ब्रैकेट, जी एनायन है ये स्क्वायर ब्रैकेट में अगर प्रेजेंट होगा, देन सेटिस्फाई बोथ द वैलेंसीज। तब ये जो एनायन है ये प्राइमरी वैलेंसी को भी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों को सेटिस्फाई करेगा इफ दिस एनायन प्रेजेंट इन दिस स्क्वायर ब्रैकेट। ओके, नॉन आयनाइजेबल, और ये नॉन आयनाइजेबल होगा जब कोई भी एनायन इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होगा तो वो सेटिस्फाई करेगा दोनों वैलेंसीज और नॉन आयनाइजेबल होगा, और ये रिप्रेजेंट भी करेगा इससे डबल लाइन से, डैश प्लस डॉटेड लाइन। ओके, अब हम देखते हैं इस वाले इसमें ये कंपाउंड का स्ट्रक्चर है इस कंपाउंड कॉम्प्लेक्स का। तो इसमें जो जो अमोनिया है ये डैश लाइन से है प्योरली, और जो क्लोरीन है, जो अंदर वाली दो क्लोरीन है वो डैश और डॉटेड दोनों से रिप्रेजेंटेड है। मतलब ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एनायन है, तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगर एनायन आता है तो उसको हम दोनों डैश और डॉटेड दोनों से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और ये जो क्लोराइड है ये स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है, तो ये तो प्राइमरी वैलेंसी है, इसको हम सिर्फ डॉट से करेंगे। तो अब यहाँ कुछ क्वेश्चन हैं उनको देख लेते हैं। सेकेंडरी वैलेंसीज कितनी होंगी इसमें? इस स्ट्रक्चर में सेकेंडरी वैलेंसीज कितनी होंगी? तो सेकेंडरी वैलेंसीज कौन सी वैलेंसीज होती हैं? जो डैश से रिप्रेजेंटेड होती हैं। तो डैश से ये रिप्रेजेंट है, ये रिप्रेजेंट है, ये रिप्रेजेंट है, ये रिप्रेजेंट है, और डैश में तो इसमें भी है, तो ये भी रिप्रेजेंट है और ये भी रिप्रेजेंट है। तो ये टोटल 6 वैलेंसीज हैं। 6 वैलेंसीज जो हैं वो डैश से रिप्रेजेंट है, तो इसका आंसर होगा 6। इसमें प्राइमरी वैलेंसीज कौन सी होती हैं? तो प्राइमरी वैलेंसीज जो होती हैं वो रिप्रेजेंट होती हैं डॉटेड लाइन से। तो हियर 3 क्लोराइड जो है वो डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट हैं, ये और ये। तो ये 3 प्राइमरी वैलेंसीज हो गई। ठीक है, ये वाली जो वैलेंसीज होती हैं ये डबल लाइन से है, तो ये दोनों में काउंट होंगी। ठीक है, और आयनाइजेबल, इसमें आयनाइजेबल कौन कौन सी हैं? इनमें आयनाइजेबल सिर्फ और सिर्फ जो प्राइमरी वैलेंसीज होगी वही होगी। क्लोराइड सिर्फ 1 क्लोराइड आयनाइजेबल है। क्या लिखेंगे हम यहाँ? 1 क्लोराइड आयनाइजेबल है। ओके, अब ये एग्जाम्पल को देखते हैं। हमें दो कंपाउंड दिए गए हैं। एक दिया गया है COCl3 कोबाल्ट क्लोराइड, और दिया गया अमोनिया। ठीक है, और हमसे कहा इसकी रिएक्शन हो
रिएक्शन करा दी गई है, ठीक है, AgNO3 में, तो हमें AgCl3 के 3 मोल्स मिल रहे हैं। तो ये पूछ रहा है कि बताओ इस रिएक्शन में कॉम्प्लेक्स जो बनेगा उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसका फार्मूला क्या होगा, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स का फार्मूला क्या होगा वो हम ऐसे देख सकते हैं, ये जो है यहाँ 3Cgl, ये वाले जो है ये 3Cgl, इसका मतलब 3 क्लोराइड है इसमें, तो ये 3 क्लोराइड तो इसमें आ गए, मतलब ये आयनाइजेबल है, ये आयनाइजेबल है, जब भी तो रिएक्ट हुए होंगे तभी तो बाहर आएंगे। तो ये जो है, तो ये हमें जो देगा कॉम्प्लेक्स देगा, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होगा, क्या होगा, कोबाल्ट, ठीक है, और अमोनिया के 6, और ये, और 3 क्लोराइड नीचे बाहर, ठीक है। अब हम इसको जब AgNO3 इसमें डालेंगे, पहले तो ये कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर इसमें हम AgNO3 डालेंगे तो फिर हमें ये मिल जाएगा AgCl3। जैसे मान लो इसमें AgNO3 अगर हमने डाला, तो ये AgNO, ये एक्सेस में डालते हैं हम हमेशा, तो ये क्लोराइड, तीनों क्लोराइड जो है वो AgCl से रिएक्ट कर जाएंगे, और AgCl के 3 मोल्स ऑफ AgCl के PPT बन जाएगा इस तरीके का, ओके। ऐसे यहाँ पर क्या है, 2 AgCl है, तो यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ AgCl का प्रेसिपिटेशन है, तो यहाँ 2 क्लोराइड जो हैं वो प्राइमरी प्राइमरी वैलेंसीज होंगे, तो 2 क्लोराइड, 3 क्लोराइड में से 2 तो प्राइमरी हो गए, और एक क्लोराइड जो बचा वो क्या होगा, सेकेंडरी वैलेंसीज, ओके। हम इसको इस तरह लिखेंगे, इस कंपाउंड को, कोबाल्ट और अमोनिया 5 5, और क्लोराइड, एक क्लोराइड अंदर और 2 क्लोराइड बाहर। अब इसको अगर हम AgNO3 से, एक्सेसिव AgNO3 से ट्रीट कराएंगे, देन वी विल गेट व्हाट, AgCl के 2 मोल, क्योंकि ये तो यही वाली वैलेंसीज तो आयनाइजेबल होती है, और ये आयनाइजेबल होती है, ये इससे रिएक्ट करेगी, और रिएक्ट करने के बाद 2 मोल, क्योंकि 2 क्लोराइड है तो 2 मोल ऑफ AgCl बनेंगे। यहाँ 3 क्लोराइड थे तो 3 मोल ऑफ AgCl बन रहे थे, ओके। अब यही कंपाउंड रिएक्ट कर कर AgCl का 1 मोल बना रहा है, तो कॉम्प्लेक्स क्या होगा, देखिए भाई कॉम्प्लेक्स क्या होगा, कोबाल्ट। अब एक Cl जो है वो प्राइमरी वैलेंसी में रखना है, मतलब 2Cl जो है वो अंदर रखना है, तो कोबाल्ट और अमोनिया के 4, क्योंकि इसकी 6 होता है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, तो 4 तो अमोनिया से ऑक्युपाइड हो जाएगा, और 2 क्लोराइड भी रखना है, 2 क्लोराइड से, ओके। और एक Cl जो है वो बाहर। अगर अब हम इसको AgNO3 एक्सेस से कराएंगे ट्रीट, तो ये हमें क्या देगा, ये कॉम्प्लेक्स देगा, ठीक है, और प्लस में 1 मोल ऑफ AgCl देगा, क्योंकि एक ही क्लोराइड बाहर है, तो 1 मोल ऑफ AgCl देगा, ठीक। इसकी ट्रिक क्या है, कि ट्रिक ये है कि जितने क्लोराइड आयंस आपके अंदर होंगे, आपके बाहर होंगे क्लोराइड आयंस इस कॉम्प्लेक्स में, उतने ही मोल्स AgCl के बनेंगे। देखो यहाँ एक क्लोराइड आयन बाहर था तो 1 मोल ऑफ AgCl बना, यहाँ 2 क्लोराइड आयन बाहर थे तो 2 मोल बने, यहाँ 3 क्लोराइड आयन्स बाहर थे तो 3 मोल ऑफ AgCl बन गए, ओके। और यहाँ पर कितने क्लोराइड आयन्स आएंगे बाहर, वो डिसाइड करेगा कि यहाँ पर कितने क्लोराइड से AgCl बना है। अगर यहाँ तीनों की तीनों क्लोराइड से AgCl बना है तो तीनों की तीनों बाहर आएंगे, यहाँ पर दो दो मोल्स ऑफ AgCl के बने तो 2 क्लोराइड बाहर आएंगे, यहाँ पर 1 मोल ऑफ AgCl का बना तो एक एक क्लोराइड बाहर आएगा और 2 अंदर चले जाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है PdCl2.4NH3 को रिएक्ट करा रहे हैं हम एक्सेसिव AgNO3 से,
तो कह रहा है कि 2 AgCl के पीपीटी मिल रहे हैं, 2 moles ऑफ AgCl के पीपीटी मिल रहे हैं। तो ये पूछ रहा है कि अब इसमें सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी। ठीक है, तो पहले तो हम कॉम्प्लेक्स देखें, कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा। ओके, तो इसमें कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा, 2 AgCl मतलब 2 क्लोराइड हमें बाहर रखना है। तो ये दोनों के दोनों क्लोराइड कहाँ रखना है, बाहर, क्योंकि 2 AgCl है, 2 क्लोराइड हमें बाहर रखना है। ठीक है, और बचा अंदर PD। ठीक है, अब ये PD और 4 अमोनिया बचे हैं, तो 4 अमोनिया इसके लाइगेंड हो जाएंगे। अमोनिया इज मोनोडेंटेड लाइगेंड, तो PD+2 का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, तो ये 4 इसके लाइगेंड हो जाएंगे। ठीक है, अब सेकेंडरी वैलेंसी पूछ रहा है, तो सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर का कितना है, 4, तो सेकेंडरी वैलेंसी हो जाएगी 4। कॉम्प्लेक्स पूछ रहा है, क्या क्या बनेगा, ये कॉम्प्लेक्स ये बनेगा PdN3H4Cl2। ओके, अब प्राइमरी वैलेंसी पूछ रहा है, तो प्राइमरी वैलेंसी कितनी है, 2। तो आयनाइजेबल कितनी है, वो भी 2। जो प्राइमरी वैलेंसी होती हैं वही आयनाइजेबल होती हैं। एक क्वेश्चन और है, ये CrCl3.6 वाटर कितने आयंस देगा। ठीक है, एक्वस में, तो देखें भाई 3 आयंस देता है, मतलब ये 3 आयंस देता है। तो ये इसमें कौन सा वाला कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये 3 आयंस देगा। तो देखो भाई, अगर ये वाला कॉम्प्लेक्स बन रहा है, तो ये वाटर में कितने आयंस देगा, जब इसको हम वाटर में डालेंगे तो ये 3 आयंस तो क्लोराइड आयंस देगा। ठीक है, ये क्योंकि ये वाला तो आयनाइजेबल होता है, और एक पूरा ये कॉम्प्लेक्स दिया, एक ये आयन हो गया पूरा कॉम्प्लेक्स का, तो ये टोटल 4 आयंस हो गए। यहाँ देखते हैं, यहाँ अगर हम इसको वाटर में डालेंगे, ये तो वाटर ही रहेगा, तो एक कॉम्प्लेक्स मिलेगा और एक ही क्लोराइड आयन मिलेगा, तो टोटल 2 मिलेंगे यहाँ। इसको देखते हैं, इसमें क्या होगा कि एक तो कॉम्प्लेक्स मिलेगा और 2 क्लोराइड आयन मिलेंगे, तो ये 3, और हमसे पूछा है 3 आयंस किस में मिलेंगे, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, डबल सॉल्ट, when two simple compound are mixed, then an additional compound formed is called double salt। ठीक है, जैसे ये 2 सिंपल सॉल्ट हैं, ये जब ये कंबाइंड होते हैं, देन एडिशनल सॉल्ट इज फॉर्म, ये सॉल्ट बनेगा, ये डबल सॉल्ट है, इसमें 2 सॉल्ट है, ये KCl, एक MgCl2.6H2, इसको कार्नेलाइट कहते हैं। ठीक है, अब डबल सॉल्ट ऐसे बनते हैं, कॉम्प्लेक्स कैसे बनते हैं, व्हेन अ सेंट्रल मेटल एटम having a coordinate bond with the ligand around it, then the compound formed is called complex, like this। जैसे ये आयरन है, सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है, और इसके ऐसे चारों तरफ CN साइनाइड के लाइगेंड्स हैं। तो इस तरीके का जब अरेंजमेंट होता है सेंट्रल मेटल के अराउंड लाइगेंड, ये लाइगेंड है, तो ये इस तरीके का जो कंपाउंड बनता है उसको हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने क्या करा, 4KCN को रिएक्ट कराया FeCN2 से, तो हमें मिल गया क्या, K4FeCN6, ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट मिल गया। अब सेकेंड पॉइंट क्या है, लूज आइडेंटिटी इन वाटर एंड गिव टेस्ट ऑल ऑफ इट्स कंपोनेंट। डबल सॉल्ट जो होते हैं, अगर हम उनको वाटर में डिजोल्व करते हैं, तो लूज आइडेंटिटी इन वाटर, मतलब जब हम उनको वाटर में डालेंगे तो वो फिर हमें डबल सॉल्ट नहीं मिलेंगे, फिर हमको ये आयंस मिलेंगे। जैसे KCl MgCl2 को हम जब वाटर में डिजोल्व करेंगे इसमें, तो हमें पोटेशियम आयन मिलेगा, क्लोराइड आयन मिलेगा, Mgc+2 मिलेगा। हमें यहाँ पर Kc.MgCl2 नहीं मिलेगा, ये हमें सिर्फ आयंस की फॉर्म में मिलेगा। तो लूज आइडेंटिटी इन वाटर एंड गिव टेस्ट ऑल ऑफ इट्स कंपोनेंट, क्योंकि ये आयंस की फॉर्म में मिलेगा, ये तो ये आयंस जो होंगे वो अपना अपना टेस्ट देंगे। जैसे
को अगर हम AgNO3 से ट्रीट करेंगे तो ये AgCl का वाइट पीपीटी दे देगा। ओके, इधर कॉम्प्लेक्स क्या करते हैं, रिटेन देयर आइडेंटिटी इन वाटर एंड डज नॉट गिव टेस्ट ऑल ऑफ इट्स कंपोनेंट। ये कॉम्प्लेक्स को, ये जो कॉम्प्लेक्स है ये वाला, ये कॉम्प्लेक्स को कहते हैं कॉम्प्लेक्स। अगर इस कंपाउंड को अगर हम वाटर में डालेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स तो रिटेन करेगा अपनी आइडेंटिटी इन वाटर एंड डज नॉट गिव टेस्ट ऑल ऑफ इट्स कंपोनेंट। मतलब ये इसका टेस्ट नहीं देगा ना इसका टेस्ट देगा, सिर्फ इसका टेस्ट देगा ये। ठीक है, तो ये सारे कंपोनेंट का टेस्ट नहीं देता, ये सारे कंपोनेंट, जैसे KCl का भी टेस्ट देगा, MgCl में जितने भी कंपोनेंट हैं Mg और Cl दोनों का टेस्ट देगा, मगर ये जो है सिर्फ इसका टेस्ट देगा और इसका टेस्ट नहीं देगा। इस जो कॉम्प्लेक्स के अंदर होते हैं उनका टेस्ट नहीं देता। ठीक है, तो ये डिफरेंस थे डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में। अब ये आपके बोर्ड में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये बहुत सिंपल है और जो जितना मैंने पढ़ाया है उसमें से ये सब सारे के सारे क्वेश्चन आपसे कवर हो जाएंगे। ठीक है, आप कर लेना, अगर नहीं होते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको फिर उसका सॉल्यूशन भेज दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर